जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और इनायत और टीचर की परमिशन से आज का प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिला। आप सबको आप सबको इस दर्स कुरान में खुशामदीद है। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 74 पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को समझने और उस पर अमल पैरा करने और उस दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज का प्रोग्राम का टाइम लिमिटेशन हर पार्टिसिपेंट के लिए 5 मिनट रखा गया है। इसमें दुआ भी शामिल है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम सिस्टर ज़ेबा तबस्सुम से गुजारिश करते हैं कि वो आए और कुरान की तिलावत करें। सिस्टर ज़ेबा तबस्सुम जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون صدق الله العظيم. माशाल्लाह। अब सिस्टर सदफ अदनान से गुजारिश करते हैं कि वो आए और तिलावत करें 74 नंबर आयत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. जी माशाल्लाह, दोनों सिस्टर ने बहुत ही अच्छी तिलावत की। अब जितना हमको कुरान पढ़ना ज़रूरी है उतना ही समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए हम सफ़िया हैदर से गुजारिश करते हैं कि वो आए और वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्मा फिर असत सख्त हो गए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल मिन बादी ज़ालिका इसके बाद फहिया सो वो कल हिजारती पत्थर जैसे औ या अशद्दु अस्वता अस्वतन इससे ज्यादा सख्त व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों से लमा अलबत्ता यतफज्जरु फूट निकलती है मिनहु इससे अल अनहार नहरें व इन्ना
اور بے شک منہا اس سے بعض لما البتہ جو یشققو ہٹ جاتے ہیں فیخرجو تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی وَإِنَّا اور بے شک منہا اس سے لما البتہ یہبطو کرتا ہے من خشیتی خوف سے اللہ کے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی طرح سے ہر لفظ کا مطلب سمجھایا گیا، جزاک اللہ۔ اب ہم سسٹر آصفہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اصطلاحی ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے بے خبر نہیں ہے۔ جی، سسٹر نزات مسعود سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تفسیر بیان کریں۔ جی السلام علیکم ایمن، میں پڑھوں گی تفسیر۔ جی یعنی بعد مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کا چشمہ بہہ پڑا۔ یہ ہم 60 نمبر آیت میں پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور بعد اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا نہیں تپشتے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 اور سورہ احزاب آیت نمبر 27 میں آیا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں کی بات نہیں ہے۔ آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، آصفہ آپی اور شادمہ آپی نے بہت ہی اچھا تفسیر بیان کیا۔ اب ہم اس کا مفہوم کو سمجھنے کے لیے نسرین فاطمہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور مفہوم کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 کا مفہوم۔ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے کیونکہ انہوں نے اتنی حجت کے بعد گائے ذبح کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ گائے ذبح کر دی تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک گائے الہ کا درجہ حاصل کیے ہوئے تھی۔ وہ لوگ گائے کو پوچھتے تھے، کہتے تھے کیا ہم اپنے الہ کو ذبح کر دیں؟ تو جب انہوں نے دیکھا اتنا بڑا معجزہ اور پھر بھی حق کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اتنا قریب سے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ دل کا کام ہے محسوس کرنا، اگر کسی کا دل محسوس ہی نہیں کرتا، احساس ہی نہیں اس میں، تو وہ دل بے حس ہے۔ کوئی اس کے سامنے روئے، چیخے، چلائے، کوئی اثر ہی نہیں اس پہ، تو پھر
तो जिस शख्स के दिल पे कोई असर ही ना हो उस शख्स का दिल सख्त होता है। ऐसे शख्स को संगदिल कहते हैं। संगदिल कहते हैं पत्थर दिल वाले को। इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं फहिया कल हिजारा, तो उनके दिल पत्थर हो गए, बल्कि पत्थर से भी सख्त हो गए, क्योंकि पत्थर तो फट भी जाते हैं, उनमें से नहरें बहती हैं और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल के दिलों पे मोहर लगा दी, इसलिए कि उनके दिल सख्त हो जाते हैं जब उनके अंदर कुछ भी जज्ब करने की सलाहियत नहीं रहती, उनके अंदर से कोई खैर नहीं फूटती और उनके अंदर कोई नरमी बाकी नहीं रहती। तो फिर अल्लाह सुब्हानो ताला भी उनसे बात करने की सलाहियत छीन लेते हैं, फिर वो लोग ईमान नहीं लाते और उन्हें हिदायत नहीं मिलती। यहाँ पर अल्लाह ने पत्थरों की कुछ खूबियों का जिक्र किया है और इंसानों को पत्थर से भी बदतर करार दिया कि जब वो अल्लाह की इताअत से हट जाएं। पत्थर में भी एक किस्म का शऊर होता है। कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह सुब्हानो ताला की तस्बीह बयान ना करती हो। जर्रे से भी छोटी किस्म के पत्थर भी घूम रहे हैं, जैसा कि हमें मालूम है, और वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला इस आयत में फरमाते हैं कि ये जो अहले यहूद थे ये पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। इतना असर इनमें हो जाए अल्लाह की किताब का कि लोगों के लिए ये चश्मे की तरह बन जाएं, ऐसे भी नहीं थे ये। और ये चश्मे की तरह बन जाएं ऐसे भी नहीं थे, और इनमें इतना शऊर नहीं कि दो चार लोगों को फायदा पहुंचा दे, और इतना ही अल्लाह की आयत का इन पे असर हो जाए कि लोगों के लिए फायदा तो ना पहुंचाए, खुद अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा कर ले, वो भी नहीं थे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पत्थर से भी ज्यादा इनके दिल सख्त हो गए इनकी बदअमली की वजह से। और ये आयत हर उस शख्स के बारे में है जिस पे कुरान या अल्लाह ताला की इस कायनात में जो दलाइल रखे हैं और उन दलाइलों से जो जर्रा बराबर भी मुतासिर नहीं होता, उस पर भी ये आयत पूरी की पूरी सादिक है। अल्लाह पाक हमें ऐसी दिल की सख्ती से बचाए, आमीन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नसीन फातिमा, आपने आयत का मकसद बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। सिस्टर हबीबा खातून हमें अमल की बातें बताने आएंगी कि हम इस आयत से अपनी जिंदगी में हम क्या सीख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल की बातें। नंबर 1, दिल को सख्त ना होने दीजिए। अल्लाह सुब्हानो ताला ने बताया है कि बनी इसराइल के दिल गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से इतने सख्त हो गए थे कि उन पर नसीहत का कोई असर ही नहीं होता था। इसीलिए हमें अपने दिल को गफलत, तकब्बुर, हसद और गुनाहों से पाक रखना चाहिए ताकि वो नरम रहे। नंबर 2, कुरान सुनकर दिल में नरमी पैदा करनी चाहिए। जिस दिल पर कुरान का असर न हो वह गोया पत्थर से भी ज्यादा सख्त माना जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के दिल जंग आलूद हो जाते हैं जैसे लोहा जंग आलूद हो जाता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इलाज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र और मौत को याद करते रहना चाहिए। नंबर 3, अल्लाह ताला के खौफ से दिल रगना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। तो इंसान का दिल अगर अल्लाह के जिक्र से भी नरम न हो तो ये बड़ी महरूमी की बात है। तो हमें अपने दिल में खशयत इलाही पैदा करनी चाहिए और अल्लाह ताला का खौफ और मोहब्बत और इखलाक और तकवा अख्तियार करना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मकदूर भर अल्लाह के तकवा, खौफ, खशयत इलाही को अपने ऊपर लाजिम कर लो और हर शजर हजर के पास यानी हर जगह अल्लाह का जिक्र किया करो, और जो भी कोई बुरा काम कर बैठो फौरन अल्लाह ताला के सामने उससे अज़सरे नौ तौबा करो।
पोशीदा गुनाह की पोशीदा तौबा और एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी आदमी ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के ज़िक्र से ज़्यादा उसको अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाला हो। अल्लाह ताला हमें हम सभी लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दें, आमीन। जी माशाल्लाह। अब सिस्टर शबाना अय्यूब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आयत से रिलेटेड क्वेश्चन करें ताकि हम सब जवाब देने की कोशिश करें। शबाना अय्यूब आए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही हूँ। इस आयत में कुल बुकुम के क्या मायने हैं? क्या सिस्टर कुलू दोबारा से बुकुम, सवाल हाँ, को बताइए, इस पूछिएगा। आयत में कुलू बुकुम के क्या मायने हैं? तुम्हारे तुम्हारे दिल। हमारे दिल यस, करेक्ट तुम्हारे आंसर, दिल। करेक्ट आंसर। जी, आयत में कल हिजारती के क्या मायने हैं? पत्थर जैसे। पत्थर जैसे। राइट आंसर। आयत में दिल को किस चीज की तरह सख्त होना बताया गया है? पत्थर की पत्थर तरह। के जैसे, पत्थर जी के माने उससे ज्यादा सख्त। जी, राइट आंसर। आयत में दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, यहाँ तक कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। ये बात किस कौम के लिए कही जा रही है? बनी इस्राइल के लिए। इस्राइल कौम के बनी इस्राइल। जी। आयत के मुताबिक नहरें किससे फूटकर बहने लगती हैं? पत्थरों से। बाज पत्थरों से। पहाड़ों से। पहाड़ों से, बाज पत्थरों से भी। जी, राइट आंसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिस्टर फरहीन जमील से गुजारिश है कि वो आए और अपना क्वेश्चन का सेशन पेश करें। जी, आयत नंबर 74 में कसद के मायने क्या हैं? किस चीज के माने? होंगे। सख्त होना, सख्त होना। जी, सख्त हो गए। सख्त हो गए हैं। सख्त हो गए। जी, इस आयत में कितने तरीके के पत्थर बताए गए हैं? 3 तरीके तरीके के पत्थर बताए गए हैं। जी, बिल्कुल ठीक। 3 तरीके के पत्थर बताए गए हैं। एक तो वो जिनसे नहरें जारी होती हैं, जी। दूसरे वो जो फट पड़ते हैं, और तीसरे वो जो अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से नीचे गिर जाते हैं। पत्थर के फटने से क्या निकल आता है? पानी। पानी। नहरें पानी निकल निकल आता है, जिससे अल्लाह ताला की नहरें मखलूक फायदा उठाती है। बाज़ पत्थरों से पानी निकल आता है। जी, बास पत्थर नीचे क्यों गिर जाते हैं? अल्लाह अल्लाह ताला के खौफ से, गिर जाते हैं बात अल्लाह सुब्हान ताला जी, के खौफ। बिल्कुल ठीक। बास पत्थर अल्लाह ताला के खौफ से और अल्लाह ताला की खशियत की वजह से नीचे गिर जाते हैं। आयत के आखिर में अल्लाह ताला की तारीफ किस तरह बयान की गई है? कि अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला किसी चीज से गाफिल नहीं है, उसे हर चीज का इल्म है। सब पता है अल्लाह ताला को। अल्लाह सुब्हान ताला के खौफ से कोई गाफिल नहीं है। जी, अल्लाह ताला इंसान के हर अमल से बाखबर है। वो सब कुछ जानने वाला है, चाहे वो जाहिर हो या बातिन हो। जी यही थे मेरे क्वेश्चन। जी सिस्टर सुल्ताना से गुजारिश है वो ग्रामर के मौजू पर सवाल करें ताकि हम सब जवाब दे सकें। जी, आयत से रिलेटेड ग्रामर के मौजू पे सवाल करें। पहला सुल्ताना जी। फेल एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, फेल कसद बालिहाजे जिन्स क्या है? जी, जुमले में मुअन्नस फेल क्यों लाया गया है? गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा के लिए। इस जुमले में मुअन्नस फेल इसलिए है क्योंकि वो गैर आकिल की जमा है। वेरी गुड। बाद ज़ालिका ये दो इसम है, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। हिजारती इसम जमा है, इसका वाहिद बताइए। हजरू। हजरुन। हजरुन।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशद्दु इसम किस वजन पे है? आलू के वजन पर है तब अकबरू, हाँ, अफअलू के वजन पे है, इसमें अफअलू, तब्दील कर जी दिया है। अफअलू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसवतन इसम है, इस ये मंसूब हालत में क्यों है? क्योंकि ये तमीज तमीज बन रहा है इसलिए ये मंसूब हालत में है। जुमले में तमीज बन रहा है इसलिए मंसूब हालत में है। जी। कल हिजारती मजरूर है, मजरूर होने की वजह क्या है? मिन इस वजह से वो काफ हर्फ जर है, आ रहा है के काफ, बाद आ रहा है, हर्फ जर के बाद आ रहा है, बिला जा रही थी। हर्फ मिनल के बाद आ रहा जी। नहीं हर्फ कल जर का काफ के हर्फ बाद आ जर रहा है, है जी, उसके का बाद हर्फ जर है। लिए ये मजरूर है। फिर है फयखरुजु मिनहुल माऊ, इसमें माऊ रफा में क्यों है? क्योंकि ये मरफू है। मर्फ ये मरफू फाइल है, बन रहा है। फाइल बन रहा अल्लाहू है का फाइल बन रहा है, सॉरी। ये फाइल बन रहा है इसलिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहारू, इसमें फाइल बताइए क्या है? अनहारू। अनहारू फाइल बन रहा है इसमें। जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खशियतिल्लाही, खशियतिल्लाही में अल्लाही क्यों मजरूर है? क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन ये रहा है। मुज़ाफ इलैह इलैहि बन बन रहा रहा है है। इसलिए ये मजरूर है। जी, गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वमा अल्लाहु बिगाफिलिन में माँ जो है वो कौन सा है? मुशाबा बिलैसा जी, जी मुशाबह मुशाबह बिलैसा, लैसा नहीं के है। लिए इस्तेमाल हुआ है। नहीं के लिए यूज हो रहा है। जी, नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। लाम ताकीद अगर जुमले पर आ जाए तो उससे जुमले में क्या असर पड़ता है? उससे ताकीद पैदा होती है, यानी कि जोर पैदा होता है। और पैदा होती है। तअलमुना फेल फेल मुजारा है, ये अफाल अरबा से है या खमसा से है? अफाले खमसा से खमसा। पहले खमसा से वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है पूरी आयत से, इसमें हरूफ आमला में से हर्फ मुशब्बह बिल फेल आया है, वो कौन सा है और कितनी बार आया है? इन्ना, इन्ना जी, इन्ना कितनी बार आया है? मैम 3 बार आया है। 3 बार आया। वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर हुआ ग्रामर से रिलेटेड। अब हम सिस्टर सना फातिमा से रिक्वेस्ट करते हैं वो हदीस पेश करें आप। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वालेकुम हदीस है, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, यानी जो किसी मुसलमान के ऐब छिपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसके ऐब छिपाएंगे। इसका मतलब है कि मुसलमानों को एक दूसरे का राज रखना चाहिए और उनकी गलतियों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। अल्लाह से डरने वाले और माफ करने वाले उस शख्स को क़यामत के दिन अल्लाह ताला बेइज्जत होने से बचाएंगे और उसकी मदद फरमाएंगे और उसके गुनाहों को ढक दिया जाएगा। और इसके आगे इस हदीस से हमें ये सीख मिलती है, जो लोग दूसरों को सजा देते हैं या उनकी कमियों को उजागर करते हैं, वो अल्लाह की नज़रों में जालिम माने जाते हैं। और जो लोग अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हैं और उन्हें शर्मिंदा होने से बचाते हैं, खासकर जब वो गलती पर होते हैं, इस तरह की मदद से इंसान अल्लाह की रहमत और रहम का हकदार बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कभी भी दूसरे के ऐब को सबके सामने खोलना नहीं चाहिए। शुक्रिया। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हदीस। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें दूसरों की ऐब को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए। ठीक, अब सिस्टर उज़्मा अब्बास से दरख्वास्त करते हैं कि वो सीरत नबी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले किस गार में इबादत के लिए जाते थे? गारे हिरा में। गार गारे हिरा में। गारे हिरा गारे हिरा में।
राइट आंसर। गारे हीरा आज किस पहाड़ के दामन में है? जबले नूर जबले नूर के दामन में के है। दामन में। जी, जबले नूर पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में नबी बनाए गए थे? 40 साल की उम्र में। जी बिल्कुल सही, 40 साल की उम्र में। वो कौन सी आयत है जिनसे वही का आगाज हुआ था? सूर्य सूर्य अलग अलग की इब्तिदाई पांच आयत। जी। पांच आयत। हबशा के बादशाह के लिए क्या लक़ब इस्तेमाल किया जाता था? नजाशी। नजाशी। जी। हिजरत हबशा किस सन में हुई थी? नबूवत के 5वें साल, 5 नबी हिजरी नबूवत के 5वें साल। पहली हिजरत हबशा के अमीर कौन थे? हजरत उस्मान बिन बिन अफ़्फ़ान। अफ़्फ़ान। हजरत उस्मान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी बिल्कुल सही। हिजरत हबशा के मुजाहिदों की तादाद कितनी थी? 11 टोटल 15 लोग। खाना काबे में इस्लाम से पहले कितने बुत रखे हुए थे? 360 रखे हुए थे। हिजरत हबशा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जोड़े के बारे में फरमाया था? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जोड़े। जी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फरमाया था। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स कुरान बहुत ही इल्मी और रूहानियत से भरपूर रहा। सब बहनों का दिल से शुक्रिया अदा है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम। अब हम दरख्वास्त करते हैं सिस्टर नुज़रत मकसूद से कि वो दुआ आए और हम सब के लिए दुआ करें। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर लि ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तू मेरा रब है, नहीं कोई माबूद मगर तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ अपनी ताकत के मुवाफिक। मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे अपनी बदकारियों से और तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। तू मुझे बख्श दे, बस मेरे गुनाह, तेरे सिवा कोई नहीं बख्शता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल आमाली वल अहवाई वल अदवा। ए अल्लाह, मैं बुरी आदत से, बुरे कामों से और बुरी ख्वाहिशात से, बुरी बीमारियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका बिमा ला अअलमु लिमा ला अअलमु। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि तेरे साथ शरीक करूँ और इसको मैं जानता हूँ और तुझसे माफी चाहता हूँ इसकी कि जो मैं नहीं जानता। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना मिन फितनतिल मसीहिल दज्जाल व क़िना मिन फितनतिल महया वल ममात। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم بارك لنا في الموت وفي بعد الموت اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اخرجنا في ظلمات الوهم واكرمنا بنور الهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنني بها عن الرحمة من سواك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا لا مفتونين آمين يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے اور جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں بہت خطاوار ہیں یا اللہ ہم نے اپنی پوری عمر تیری نافرمانیوں میں صرف کر دی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رحم الراحمین اللہ تو اپنے غیظ و غضب اور مصیبت اور بلاؤں کے دروازوں کو بند فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے اور یا اللہ ہماری سب جائز دعاؤں کو ہم سب بہنوں کی جائز دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو علم دین پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم جتنے بھی بیمار ہیں جو بہنیں اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو بیماری کو شفا عطا فرما لیس لہا من دون اللہ کاشفہ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما اور باروزگاروں کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما حرام روزی سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دیجئے اور ہمیں اسلام کو بدنام کرنے والوں میں سے نہ بنانا اپنی بدعمالیوں کے سبب ہمیں اپنے امتحان میں زیادہ ذلیل اور رسوا نہ کرنا یا اللہ ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا اے اللہ ہمیں صحابہ والا ایمانی جذبہ عطا فرما یا اللہ ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرما اے اللہ ان کے ایمان میں سے کوئی حبہ اور شمہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے متفکر رہنا نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف اور ڈر عطا فرما اور یا اللہ ہمیں آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم جیسے اپنے خانگی معاملات میں بے چین اور پریشان رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے دین کے لیے بے چین اور پریشان رہنا نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا ذریعہ ہلاکت نہ بنانا اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرمانا ہماری آباء و اجداد کی مغفرت فرمانا یا اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرمانا ہمیں عذاب قبر عذاب حشر سے محفوظ رکھنا آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا
या अल्लाह हिसाब किताब में हमारे आसानी और नरमी फरमाना, नामा अमाल दाहिने हाथ में अता फरमाना। या अल्लाह पुलसरात का रास्ता आसान फरमा देना। ए अल्लाह मरते वक्त हमें शैतान तरह तरह से बहकाएगा, न जाने हमारे दिलों में क्या क्या ख्याल पैदा करेगा और अपनी हर मुमकिन कोशिश हमें ईमान से हटाने की करेगा। ए अल्लाह इस कड़े वक्त में हमारी गैब से मदद फरमा देना और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा देना। ए अल्लाह हमें मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदम रखना और सही सही जवाब देने की तौफीक अता फरमा देना। ए अल्लाह तू कब्र को हमारे लिए आराम और राहत का ठिकाना बना देना। ए अल्लाह जब मैदान हश्र में पूरी मखलूक परेशान होगी और प्यास की शिद्दत से बेचैन होगी, उस वक्त सिवाय तेरे अर्श के साए के और कोई साया न होगा। ए मौला उस वक्त महज अपने फजलो करम से अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमा देना और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाना। ए अल्लाह तू हमारी दुनिया भी दुरुस्त फरमा दीजिए और उक़बा भी दुरुस्त फरमा दीजिए, बातिन भी दुरुस्त फरमा दीजिए और ज़ाहिर भी दुरुस्त फरमा दीजिए। ए अल्लाह माले साले हमें खुलूस अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमें सही मानों में नमाजी बना दीजिए, हमारी नमाजों में जान पैदा फरमा दीजिए, हमारी नमाजों में ध्यान पैदा फरमा दीजिए, हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दीजिए, हमारी नमाजों को जानदार बना दीजिए। ए अल्लाह जितने बेनमाजी हैं सबको नमाजी बना दीजिए। या अल्लाह हमें ऐसी नमाजें हमसे पढ़वा दे जो कबूलियत आपके यहाँ कबूलियत जिसे मिले। और या अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों को नमाज की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाफजे में क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह हमारी बिनाई में क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह हमारी समात में क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बनाना। या अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में हैं इस्लाम पर कायम रहें और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। ए अल्लाह हमारी इन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमसे जो गलतियाँ हो, जो कोताहियाँ हुई हो, जो पढ़ने में या दुआ मांगने में भी जो हमारे से गलतियाँ हुई हों उसको माफ़ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।